I'm a chairperson of Infosys Foundation, Bangalore. Sir, I want to thank you first because since 2014, you made it 2% compulsory towards CSR, which has made our foundation very rich. We have spent 1,200 crores, sir. I'm very happy about it. Thank you. Entire Infosys Foundation and all our volunteers believe in Vasudhaiva Kutumbakam, and we have a very nice scheme from Infosys, that is our employees who are volunteers, they are software engineers, they are not social scientists but software engineers, they take out time and work weekend, sometimes they go on sabbatical leave, we provide them a sabbatical leave, 6 months, 1 year, at times even 2 years with a stipend. And right now we have 77 such people sabbatical leave, and we have 10,000 employees who are working in various parts of India on their own, sometimes with their own money. With their help, sir, we are only, in our foundation, we are only 6 people. And our annual budget is between 350 to 400 crores. We cannot do all the work because our employees are so much part of our work and they have helped us in all the work. We are able to do enormous work, and a few of them I would like to list. We have supported the families of the Indian Army martyrs. Per family, we have given 10 lakhs, and our volunteers have gone from house to house just to see the right family, right person should get the money, and they have worked. We have spent almost 45 crore rupees on that. We have different employee volunteers group in different part of our development center, like Mamata, Sneham, Samarpan, Arpan, Sparsh, Sanjeevani, and Akanksha. All these employees get together and then they will take one agenda and work on it. With their help, sir, we have built 14,000 toilets, 70,000 libraries, 3,000 flood relief works. We have handled 12 national disasters up to date, including the recent Kerala floods. And I want to thank Government of India. They allowed us to carry free of cost 5-ton luggage to be dropped in Trivandrum. And with Jnana Bharati, we have worked a lot. Seva Bharati, we have worked with the volunteers. Home to home, sir, within 24 hours, we have reached the victims and did our level best. It's all because of our employees. We started distribution of napkins in state of Gujarat, Telangana, Kerala, Karnataka, and Rajasthan. And we take the help of R.K. Ramakrishna Mission, Chinmaya Mission, Akshay Patra Foundation. We also work with the different industries so that we can come together and help. We work with the House of Tatas, particularly in Jharkhand. Together we do the work because there are many like-minded people, sir. We stretch towards our work in the Northeast area, and there again, Seva Bharati is our great partner in this. Sir, every employee of Infosys Foundation believes the very famous line that is, Lokahitam mama karaniyam. And that we believe in it, sir, that is our strength. Sir, may I ask a question? What is your inspiration for this? Thank you, sir, for patient hearing. Jai Hind. सुधा जी, आप तो कलम की भी धनी हैं, तो आपकी कलम के माध्यम से, आपकी किताबों के माध्यम से भी लोगों को बहुत कुछ आपके अनुभवों का लाभ मिलता रहता है। मुझे खुशी है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप लोग कितना काम कर रहे हैं, उसकी भी मुझे जानकारी मिली। ये बात सही है कि आखिर के इंस्पिरेशन कहाँ से होता है। हम अगर अपने दायरे में बंद रहते हैं तो हमें लगता है दुनिया यही है, कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई सुख नहीं है। आखिर गौतम बुद्ध कैसे बने? सिद्धार्थ ऐसा तो क्या हुआ कि गौतम बुद्ध बन गया? वो भी तो राज परिवार में पैदा हुआ था, उसने भी तो सुख वैभव सब कुछ देखा था। लेकिन सिद्धार्थ गौतम कैसे बना? सिद्धार्थ गौतम तब बना
जब सिद्धार्थ ने जीवन की सच्चाई को घर के बाहर निकल करके देखा, मृत्यु क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, रिश्तेदारों का दर्द क्या होता है, और उसके भीतर से आवाज उठी और उसने सिद्धार्थ को गौतम बनाने का रास्ता खोल दिया और वो गौतम बुद्ध बन गया, जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। हम कभी टैक्सी में जा रहे हैं, हो सके तो घर से 5 मिनट पहले निकले हम, और ट्रैवलिंग के टाइम पे नहीं, ट्रैवलिंग के टाइम पर वो जो बातें करें हम सुनते रहें, जो पूछे जवाब देते रहें, लेकिन उतरने के बाद उसकी सीट के पास जाकर के उस पर कंधे पे हाथ रख करके पूछे कि भाई कहाँ के हो, बच्चे क्या करते हैं, कितने दूर से आते हो, बच्चों की पढ़ाई करते हो, छोटा सा 5-10 सवाल आप देख लेना, दिन भर की आपकी कार्य रचना में उस टैक्सी ड्राइवर के जवाबों में आपके मन के अंदर चिंतन शुरू हो जाएगा कि मैं ये तो कर रहा हूँ, लेकिन वो तो बेचारा ऐसे जी रहा है, वो तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंता में है, वो तो अपनी बूढ़ी माँ की बात कर रहा था। वहीं से इंस्पिरेशन शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई किताब नहीं होती, कोई मोदी का भाषण नहीं होता है। हमारे आसपास अगर हम संवेदना के साथ घटनाओं को अनुभव करना शुरू कर दें, हमारे यहाँ अखबार देने वाला आता होगा, किसी दिन सुबह 7 बजे हमारी आदत हो लेकिन अखबार 8 बजे तक आया नहीं, तो हम इधर उधर हाथ पैर फैलाते हैं कि भाई क्यों अखबार नहीं आया, लेकिन घर में किसी के पास उस अखबार वाले का नंबर नहीं होगा, उसको संपर्क करने का कारण नहीं होगा, क्यों नहीं आया उसकी चिंता नहीं होगी, मेरा अखबार नहीं आया इसकी चिंता जरूर होगी। जिस दिन अखबार वाला लेट हो गया, कभी पूछ लिया, अरे भाई आज क्या हो गया, परेशान तो नहीं थे ना, सब घर में ठीक ठाक है, आप देखिए आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। संवेदना हम अपने आसपास जो है जस्ट उससे कनेक्ट करने का प्रयास करें, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वांत सुख के लिए सिर्फ पूछते हैं भाई क्या हाल है। आप देखिए हमारे भीतर से एक चेतना पैदा हो जाती है, एक नई स्वयं प्रेरणा पैदा हो जाती है, जो हमें किसी के लिए जीने के लिए कुछ न कुछ करने का मन में, हो सकता है उस समय हमारी स्थिति ना हो, उस समय हमारा समय ना हो, हम भी अपनी जिंदगी जीने के लिए दिन रात लगाए हुए हैं, लेकिन 25, 30, 40 साल के बाद भी वो घटना हमें कुछ करने की प्रेरणा दे देती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी दिमाग में मेरे पास जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसको मैं वर्तमान जो समस्याओं के समाधान में कैसे उपयोग करूं, जो एक से अधिक लोगों का लाभ करे। जैसे मैंने कभी एक बार सोशल मीडिया में देखा, शायद नागपुर की घटना है, मुझे पूरा स्मरण नहीं रहा, वहां पर जो किसान अपने खेत का वेस्ट निकालते हैं, उसने गोबर वेस्ट सब इकट्ठा किया और अपनी जो कुछ भी समझ थी उसने अपना टेक्नोलॉजी का उपयोग करते करते ऐसे छोटे छोटे साधन बनाए और उसी में से छोटी छोटी ईंटें बना दी, गोबर से, पराली से, वेस्ट से, और श्मशान में मृतदेह को जलाने के लिए उसने उसको तैयार किया। और उसने पाया कि 3 घंटे में अगर बॉडी जलता है तो इससे 2 घंटे में जल रहा है। पहले अगर 20 केजी लकड़ी का इतना खर्चा होता था तो इससे आधे खर्चे में डेड बॉडी जल जाता है। अब उसने वेस्ट को वेल्थ में तो क्रिएट किया, एट द सेम टाइम सोसाइटी के गुड के लिए भी उसको परिवर्तित किया। क्यों? भीतर कोई चीज पड़ी थी जिसने उसको ये सोशल स्टार्टअप के लिए प्रेरित कर दिया और उसका परिणाम था कि उसने इस काम को किया। मैं समझता हूं हमारे आसपास की परिस्थितियों को हम अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करें, हमारे आसपास के व्यक्तियों के जीवन के साथ अपने आप को हम जोड़ें, तो इंस्पिरेशन के लिए न किसी किताब की ज़रूरत है, न किसी महानुभाव के वचनों की ज़रूरत है, अपने आप भीतर से निकलता है जो हमें सोने नहीं देता है, हमें बेचैन बना देता है। वो बेचैनी ही हमें समाज के लिए जीने के लिए ताकत बन जाती है। थैंक यू सुधा जी।